Hello and a very warm welcome. The micro, small and medium enterprises contribute to the Indian economy in a big way on many fronts. आज हम जिस मोर्चे पर फोकस करने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट्स। दरअसल जिस तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसके स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या मायने हैं, वो अपना कदम कैसे आगे बढ़ाएं, इसी पर हम मंथन करने वाले हैं। I am happy to welcome Dr. Ajay Sahai, Director General and CEO, Federation of Indian Export Organizations, FIO। आपका शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद सर। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, इनिशियली हम आपसे जो जुलाई के फिगर्स हैं उसी पर कमेंट चाहेंगे। Imports are up by almost 44% and the trade deficit has widened। क्या ये चिंता की बात है? जरूर चिंता की बात है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो प्रेटी हाई हैं और हमारा एनर्जी सोर्सेज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और सिंस ग्लोबल क्रूड प्राइसेस आर स्टिल अबव $100 अ बैरल, इस तरह की सिचुएशन आनी थी, बिकॉज हम ग्लोबल ट्रेड में एक डिस्टिंक्ट शिफ्ट देख रहे हैं अगेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स टू द सर्विसेज। एज economies are opening, people are going out, they are spending more time on the leisure. So earlier whatever little money they have, which they have spent on the goods, now they are spending more on the services. Secondly, inflation is plaguing all economies, and with high inflation the purchasing power is coming down, and therefore offtake is little less, and that is affecting the demand. But the good thing is that the demand for low value product is going up. In fact, 2 days back there were MSME company with me, and they told me that they have received an order for supply of 100,000 face wash, and he said that in US people were purchasing face wash for around $45 to $50 a bottle, but now they want to cut the spending, and from India he's supplying the same quality, almost same quality of product at $11 to $12 a bottle. Secondly, we are seeing that buyers are moving from China. A, because China is becoming costlier. B, because China is not a very reliable supplier with their zero tolerance on COVID. And C, there is anti-China sentiment going up day by day. And these two factors are positive for India. But then we should also look into the fact that if economies are entering into recession, definitely it will affect our merchandise trade. But I'm not so much worried on the trade deficit part, because I feel that some of the imports may come down, because as of now with the disruption in the supply chain, companies are having a little larger inventories. So earlier they were knowing that it will be just supplied in time, they were cutting down the inventory, but they are not sure what will happen, whether the source from they are importing will go under the lockdown or there will be shipping challenges. So they are maintaining longer inventory, and with that I think the import demand will come down. I also feel that with the demand of the petroleum going down, with many of the economies entering into recession, we'll have a lot of safeguard on that. And thirdly, I feel that while we may have a little lower than the projection, what we are projecting for the merchandise sector, in services sector we will do very well. In fact, if you look into the Governor RBI discussion today, he has also highlighted that IT, travel and tourism and transport sector is not doing well. And we hope that in this year we will have huge services exports happening. Right, sir. I'm not much worried on the current account deficit also, though we will have something on the trade deficit, but I expect that the invisible or the remittances will go up. Last year also we have remittances close to $90 billion. And finally, I think we may have a current account deficit which may go up from 1.2%, maybe close to 3%, but we have sufficient foreign exchange reserve at our disposal. Right, so we are not much concerned of that. Our greater worry is that export is generating a lot of employment. And if export slows down, its impact on employment is an issue which we need to look into. But as I told you, since the demand for low value product is going up, countries are moving from China, still there will be an opportunity for India. As we see in FY22, Indian exports did well despite an uncertain environment. जैसे आपने मेंशन किया, सप्लाई चेन्स में एक कंटिन्यूस एक तरह से हम देख रहे हैं डिसरप्शंस रहे, प्लस ये जो जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं, इनको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या FY23 की राह अगर हम देखें चैलेंजिंग हो सकती है, keeping all these factors in mind? No, definitely FY23 is a challenging, and if you look into the projection which RBI has made,
they have of course moderated the projection because it's not only for India, all economies in the world are facing the problem. But I think the geopolitical development which has happened in the past, they are putting a lot of pressure on energy and food prices. And please bear in mind that these are having inelastic demand. If you require food, you require, if you require petroleum product, you require petroleum product. And that's why these prices are not softening. But now since the two countries have agreed to allow export of some of the shipment of the grain, I'm pretty sure that this may help in bringing down the prices of these commodities also. I think we need to wait how this situation unfolds for India so far its exports are concerned, because we will have opportunity for exports in the sense that we are now having a rupee payment mechanism set up, and with that we can look into our export to Russia. There will be a lot of diversion of order which European countries were placing on Russia, which may come to India. In fact, in the past, we have done exceptionally well in petroleum sector, in iron and steel, and in many chemicals, and even for the cereals. So it may be mixed case, but of course this development is not good for the global trade and global economy. It is definitely going to add to the uncertainties, and as we all know that uncertainty is something which is not good for business. जैसे हम देख रहे हैं सर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वैसे ही काफ़ी मुश्किलें हुई थी। अब जो ताइवान, चाइना, यूएस फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें? देखिए, ऑफ कोर्स ये एक काफ़ी चिंता का विषय है, बिकॉज मैं सोचता हूँ ये दोनों कंट्रीज़ की लिटिल पॉस्चरिंग है एंड इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। एंड बिकॉज ताइवान में इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होंगे। यूएस का कमिटमेंट है, डिफेंस कमिटमेंट है ताइवान के लिए। ताइवान टुडे सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा सप्लायर है, और अगर कुछ होता है और सेमीकंडक्टर्स अफेक्ट होते हैं तो ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अफेक्ट होगा। बट आई थिंक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह के आई थिंक इंडिकेशन आ रहे हैं, होपफुली सिचुएशन यहाँ पे थम जाएगी। वो यूएस विजिट से जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका जो भी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, होपफुली इससे ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। If we talk about the macro picture, as you were mentioning, inflation is affecting a lot of economies across the globe, and also there are fears of recession in top export markets, US, Europe. अगर हम देखें वैसे सर, तो US इंडिया का एक तरीके से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी पीछे रहा, इनफैक्ट सरपासिंग चाइना। ये जो डेवलपमेंट्स हैं, इसमें MSMEs को आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, क्योंकि MSMEs को ऐसे में सपोर्ट भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले पैंडेमिक रहा एंड एट दैट टाइम दे वर अमंग्स द वर्स्ट हिट। अब वो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ऐसे में उनको कैसे सपोर्ट किया जाए? देखिए, इस समय हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह के डिसरप्शंस हैं, जिस तरह डिमांड है, हमारे MSME अगर वो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बिकॉज जनरली MSMEs के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियम कंपनीज, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जो ई-कॉमर्स रिटेल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज उसमें स्मॉल डिमांड्स आती हैं और हमारे जो माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स को उनको फुलफिल करने के लिए भी ईजी रहेगा। और मेरे को लगता है वो इन ए वे लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो वो डिमांड शायद चलती रहेगी। हो सकता है वो डिमांड और बढ़ जाए, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमीज़ में हम देख रहे हैं कि इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, इस तरह की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक टाइम है ऑल्सो जो MSMEs को अपना मीडियम टर्म रोड मैप थोड़ा देखना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो MSMEs हैं वो टेक्नोलॉजी पे उनको ज़्यादा आना पड़ेगा, बिकॉज अब हम जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देख रहे हैं और जो कि लॉन्ग टर्म रोड मैप भी रहेगा कि ग्लोबल ट्रेड भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स का ज़्यादा उसमें से रहेगा। एज ऑफ नाउ भी अब आप देखिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, they contribute to roughly 1/3 of the global trade of the size of around $6.7 trillion. इस सेगमेंट में हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं रहा है। हमारा अगर शेयर 1.8% रहा है, तो इस सेगमेंट में लेस देन 1% रहा है। लेकिन जिस तरह के PLI इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लकली PLI इन सब सेक्टर्स को कवर कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि PLI सेक्टर में मैं एक हब एंड स्पोक मॉडल देख रहा हूँ कि बड़ी कंपनी आएगी, एज ए हब इस्टेब्लिश करेगी, और हमारे MSMEs जो हैं टू स्टार्ट विद एंसिलरी वर्क करेंगे। बट क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए एंसिलरी वर्क करते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी बढ़ती है, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती है, इन ए वे उनको पेमेंट एश्योर्ड टाइमली होता है, तो वो एक स्केल अप करेंगे अपने प्रोडक्शन को, जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ग्लोबल ट्रेड में आ सकें।
तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू लुक इनटू कुछ अच्छे डेवलपमेंट हैं, जैसे कि हमने देखा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पूरा फंडामेंटल चेंज करने जा रहे हैं. दे वांट टू मेक देम अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक जोन where there will be no restriction on exports. As of now, special economic zone में यूनिट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है. अगर एक्सपोर्ट करते हैं फिर आप डोमेस्टिक सेल भी कर सकते हैं. लेकिन जो न्यू एक्ट जो कि आने जा रहा है, शायद ये डिस्टिंक्शन एक्सपोर्ट्स का ख़त्म हो जाए. तो वर्चुअली जो हमारी MSMEs की डिमांड होती है कि उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी चाहिए, तो वो SCZ में मिल जाएगी. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जो MSMEs को होता है कि अभी वो अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो लैंड या बिल्डिंग में स्पेंड कर देते हैं. उनके पास मशीनरी और टेक्नोलॉजी के लिए फिर पैसा बचता है. ये यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा प्लग एंड प्ले फैसिलिटी. एब्सोल्युटली प्लग एंड प्ले में गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है. यू कैन ब्रिंग द बेस्ट ऑफ मशीन एंड द एडवांटेज इज, जैसे उनको साल 1.5 साल लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब वो मशीनरी लाके 1 महीने के अंदर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. आपने जैसे ये भी बताया सर, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में ई-कॉमर्स का रोल भी बढ़ रहा है. तो ये जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉलर रीजन्स में हैं और जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, तो लोकल टू ग्लोबल का जो कंप्लीट प्ले है वो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनफैक्ट न्यूअर रीजन्स, न्यूअर मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. इनफैक्ट अभी मैं 2 महीने पहले इंदौर में था. मेरे को वहाँ करीब 25 से 30 यंग एंटरप्रेन्योर्स मिले. वो सब, हमें नहीं मालूम था कि वो मैट्रेसेस इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है. वो मैट्रेसेस US को एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और सब यंगस्टर थे, एज ऑफ 30-35 के थे और इतना अच्छा कर रहे हैं. देखिए, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वो आइडियली सूटेड है कंट्री लाइक इंडिया, जहां हमारे पास एक्सक्यूजिट क्राफ्टमैन हैं, आर्टिजन हैं, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं. दे हैव द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट शायद उनके पास उतना पैसा नहीं है वो कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स के लिए जाएँ. तो हमेशा हम उनसे बोलते हैं कि आप इन प्लेटफॉर्म पे आइए, टेस्ट द मार्केट. बिकॉज अगर आपका इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एज्यूमिंग आपका प्रोडक्ट US में बहुत बिकता है, तो आपको ये इंडिकेशन हो जाता है जब मैं कन्वेंशनल में जाऊंगा तो US मेरा एक मार्केट हो सकता है. तो ये बहुत अच्छा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है. और जैसे कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ध्येय, प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट है कि वो चाहते हैं कि जैसे फिशरमैन है, फार्मर्स, ये सब एक्सपोर्ट फील्ड में आए, जिससे एक्सपोर्ट को इंक्लूसिव बनाया जाए. तो ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत हेल्प करेंगे. इसीलिए मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे GI प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये ऑल्सो बहुत जल्दी रिजल्ट शो कर सकते हैं अगर इनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएं. कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं. बट अगर ये हमारे MSMEs इस पर सक्सेसफुल होते हैं तो वो माइग्रेट कर सकते हैं कन्वेंशनल फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स में. और हम लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. हम लोग चाहते हैं कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें ई-कॉमर्स पे बहुत फोकस हो. उसके लिए अगर एक सेपरेट चैप्टर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा. बिकॉज ई-कॉमर्स में बड़े छोटे प्लेयर हैं, उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम्स हैं. अगर वो सब एक जगह मिलती हैं तो हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा अभी पीछे हमने ये भी देखा था, विज्ञान भवन में प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स स्कीम भी लॉन्च की, ताकि MSMEs जो इस तरफ आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके. रैम्प भी रहा. तो इस तरह के इनिशिएटिव से जो एक्सपोर्टर्स की तरफ इस स्पेस में आना चाह रहे हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, उनको सपोर्ट नहीं, मिल बिल्कुल. सकता है. आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत MSMEs को सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट चाह रही है कि एक्सपोर्ट फील्ड में आए. और आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा, हम प्राइम मिनिस्टर को कोट करें तो उन्होंने जब वाणिज्य भवन का इनॉग्रेशन किया था तो उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि एक्सपोर्ट इज़ वाइटल टू माइग्रेट ए कंट्री फ्रॉम ए डेवलपिंग टू ए डेवलप्ड स्टेटस. तो प्राइम मिनिस्टर की सोच वही है. अगर हम एक विकासशील से विकसित देश की ओर होना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा. और हमने देखा है कि अगर हम आज की डेट में देखें कि अगर हम MSME की ब्रॉड एंड डिफिनेशन देख लें तो रफली 60% से कंट्री का एक्सपोर्ट MSMEs के थ्रू हो रहा है. और ये मेरे को लगता है इसको हम 80% तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स 12 से 15% पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होगा जो लार्ज कंपनीज कर पाएंगी और कुछ सेक्टर्स में लार्ज कंपनीज का इंपॉर्टेंट रोल होगा. बट अगर हम इस 60% के फिगर को 75 से 80% ले जाएं तो हम MSMEs को काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर दे पाएंगे. जैसे हम बात कर रहे थे, चैलेंजेस कई हैं. हम ये भी देख रहे हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर अब इंटरेस्ट रेट्स में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट्स का हुआ और अभी प्रेशर्स इन्फ्लेशनरी वैसे भी हैं. इस पहलू को भी अगर आप टच कर सकें क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर है. हम लोग का व्यू है कि जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है व्हेन वी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वो कम डेप्रिशिएट की है और उनकी करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट की है. अभी हम लोगों ने देखा जैसे एज ऑफ टुडे
रुपी जो है इस साल करीब 7.3% डेप्रिशिएट किया है। जो बास्केट ऑफ 6 करेंसीज हैं जिसमें यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, कनेडियन डॉलर है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है और स्वीडिश क्रोनर है, वो 11.6% डेप्रिशिएट की हैं। तो एक तरह से देखिए हमें 4.3% का डिसएडवांटेज रहा है। हम ये भी कहते हैं कि हम टुडे एशिया में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज हैं। इसका मतलब बाकी कंट्रीज से हमारी कॉम्पिटिटिव में हम फॉरेन एक्सचेंज फैक्टर को, एक्सचेंज रेट को फैक्टर को अगर करते हैं तो वो कम हो रही है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला है कि अब इंटरेस्ट रेट हार्डन हो रहे हैं, अभी आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, रेपो रेट 5.4% पे आ गया है, ये प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया है। अगर ये प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सपोर्ट है जो एमएसएमई को दिया था वो 5% दिया था, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया बिकॉज उस समय इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे। अगर ये इंटरेस्ट रेट प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं तो ज़रूरी है जो सपोर्ट एमएसएमई इसको प्री कोविड टाइम पे था वो सपोर्ट मिल जाए। तो हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी जो कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 5 से 3% लाया था एमएसएमई को अगेन 5% कर दें तो वो जरूर इनकी क्रेडिट कॉस्ट को कम करने में सहायता होगा। सर, व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन द शिपिंग कंटेनर फ्रंट? वो एक एक्सपोर्टर्स के लिए एक चैलेंजिंग इशू रहा। The container position has sufficiently eased out. Of course, the reefer container is a challenge, and of course, maybe to some destination where shipping lines are not plying on a regular basis, that's an issue. But container availability has improved drastically. The freight has also somehow moderated. On a rough scale, we can say that freight has moderated by 30%. But since they are very high still, I think industry is concerned with that. In this changing world order, in the midst of the China plus one strategy, what is the feedback you're getting from the ground, sir? क्या इंक्वायरीज काफ़ी आ रही हैं, क्या रुझान काफ़ी हो रहा है और क्या हम रेडी हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइना +1 की बात है और उसमें इंडिया डेफिनेटली रडार पे है। इंडिया से अगर एक्सपोर्ट अच्छा हुआ इसमें ये फैक्टर है कि बहुत सी ग्लोबल कंपनीज अपना प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफाई कर रही हैं और उनको लगता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हु कैन मैच दोज क्वांटिटीज़। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें उस तरह की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आज की डेट में एक बहुत अच्छा फैक्टर है और इनफैक्ट अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें भी आया है कि इंडिया में जो कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो अप्रैल और मई महीने में दोनों डबल डिजिट में थी। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट जून में था, वो भी काफ़ी बढ़ा था। तो अगर ये कैपिटल गुड्स इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में तो ये शो कर रहा है कि प्रॉब्ली कैपेसिटीज़ जो थी यूटिलाइज हो गई हैं और न्यू कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है जिसको इंडस्ट्री कर रही है। तो अगर ये हम काम करते हैं तो ऑफ कोर्स जिस तरह का हमें सप्लाई करनी जो क्वांटिटीज़ वो मैच करने में ज़रूर मदद मिलेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हमें चाइना को रिप्लेस करना है तो हमें अपना प्रोडक्शन जो बेस है उसको काफ़ी एनलार्ज करना पड़ेगा। बट आई थिंक जो इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं इंडस्ट्री उस तरह की काम कर रही है। बहुत सी कंपनी जो विदेशों की कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आई हैं। उन्होंने कई जगह उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, बहुत जगह उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और लॉन्ग टर्म इंडिया का जो परसेप्शन है वो बहुत पॉजिटिव है। इंडिया हैज़ डन वेरी वेल। स्टिल इस साल भी शायद हम बेस्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी रहेंगे और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म जो भी पर्सपेक्टिव हो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो सर, क्या ये कहना ठीक हो गया कि एसएमईज को कि वो अपना कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें? आप जैसे कह रहे थे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर है, इंडस्ट्री 4.0 की बात है, अब 5G आ रहा है, ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, अपना इनोवेट करें, ब्रांडिंग पर जोर दें, बेटर क्वालिटी पर जोर दें। मतलब इन अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनके लिए उनको अपने आप को स्पीड से चेंज करना। आपको बहुत आपने सही बात की, ये चीज़ उनको ज़रूर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट्स के लिए हमें क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बड़ी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में बनाने पड़ेंगे बिकॉज एक्सपोर्ट्स में आपका कंपटीशन बेस्ट ऑफ द कंट्रीज से होगा और आज की डेट में कंज्यूमर क्वालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस है। दे आर विलिंग टू पे ए प्राइस ऑल्सो। अगर वो लो वैल्यू प्रोडक्ट है उसमें भी वो क्वालिटी आज की डेट में मान के चलता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो आई थिंक फोकस हमारा टोटल क्वालिटी के ऊपर आएगा। अगर हम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्शन रखेंगे तो वो ज़रूर आएगा। और टेक्नोलॉजी के साथ आई थिंक मैं ये हमेशा एसएमईज से बोलूँगा कि हमें कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना चाहिए। इनोवेशन पे हमारा फोकस होना चाहिए बिकॉज ग्लोबल ट्रेड में आप सेम प्रोडक्ट लेके नहीं चल सकते। टेक्नोलॉजी जिस तरह मूव कर रही है हमेशा कंटिन्यूअस इनोवेशन रिक्वायर्ड होगा।
तो शायद हम एमएनसी हमें चाहेंगे कि उनके ऊपर ये ज़रूर फोकस दें कि वो कैसे इनोवेट करते रहेंगे। इनोवेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमें ये मान के चलनी चाहिए कि ग्लोबली ये ट्रेंड हो रहा है कि वी हैव टू कट डाउन द कॉस्ट एंड इंक्रीज क्वालिटी। इट्स अ लिटिल पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बट वन हैज़ टू मैनेज दैट। और सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इनिशियली की रिसेशन को लेकर फेयर्स हैं, कोई ऐसे क्षेत्र जो आपको लग रहा है जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक हो सकता है, मे बी लाइक ये फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं, शायद उन पर उतना इम्पैक्ट ना हो? Even if the demand of product goes down, I think people will be spending on food and pharma and probably the low value good. So I'm personally of the view that we have huge advantage in pharma. The pharma figure may not be that encouraging because they have done exceptionally well during the pandemic and they were on a large base. So, but I feel that the kind of opportunity which is now open, let us say in Russia and many other countries, this sector can definitely benefit it out of it. We also feel that a lot of countries are under the sanction, and since pharma is not under the sanction, pharma companies can take advantage of that as well. सर, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं उनको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स ने अच्छा किया है, लेकिन मैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ये सिर्फ कहना चाहेंगे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वेज आर्बिट्राज हमारे साथ है, हमारे वेजेस कम है इसलिए हम बढ़ा देंगे। कोई भी है वो बिजनेसमैन है, वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखता है, तो वेजेस के साथ प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मेरा लेबर एज्यूमिंग वो 50% चीप है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी 1/3 एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लेबर, हमें लेबर का एडवांटेज नहीं है। तो आई थिंक हमें जहाँ ये वेज आर्बिट्राज का एडवांटेज लेना होगा तो हमें स्किलिंग पे बहुत बड़ा फोकस लाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन किया हुआ है, इंडस्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप आ रही है, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोएक्टिव होकर आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा किस तरह की स्किलिंग रिक्वायर्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ द लेस स्किलिंग। अगर बिजनेस इंडिया से कहीं और चला जाए, बिकॉज हमारे पास ह्यूज मैन पावर है, हम कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यील्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस लाना पड़ेगा और इंडस्ट्री ड्रिवन स्किलिंग हो सकती है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लिटिल फंड फॉर द स्किलिंग, बट क्या स्किलिंग रिक्वायर्ड है वो इंडस्ट्री को एजेंडा सेट करना पड़ेगा। तो सर, हम आपसे एक 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एक और क्रूशल एस्पेक्ट है, क्योंकि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एफटीएज में हाउ आर यू रीडिंग इंडियाज़ अप्रोच सर, द स्ट्रैटेजी? इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंडिया इस बार बढ़ रहा है, जैसे यूएई के साथ हो या इनफैक्ट हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, ये यूके के साथ आगे है, कनाडा के साथ। ये जो रीजन्स हैं, क्या जो हमारे एसएमईज़ हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इंडिया की जो एफटीए स्ट्रेटजी है वो बहुत मूव कर गई है। पहले हमने एफटीए किए तो उन कंट्रीज़ के साथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। विद द रिजल्ट आवर एक्सपोर्ट ग्रोथ कुड नॉट मैच द इम्पोर्ट ग्रोथ। और फिर एक बहुत ज़्यादा ये बात आई कि नहीं, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं इंडिया के और इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं एफटीए से। गवर्नमेंट ने जो अब पॉलिसी बनाई, जो रिविजिट किया है एंटायर एफटीए, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज एंड द मेजर एक्सपोर्ट्स मार्केट। तो जैसे अभी यूएई के साथ ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए किया है, हम यूके के साथ एक करने जा रहे हैं, देन ईयू इज़ इन द पाइपलाइन, जीसीसी इज़ इन द पाइपलाइन। इन ऑल दीज कंट्रीज़ के साथ हमने ये चीज़ को देखी हुई है, तो हमें और अच्छे मार्केट मिलने जा रहे हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सब्सटेंशियल है, और अगर हम वो ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट्स और भी अच्छा हो सकता है। मैं जस्ट अभी खाली मई महीना, पहला महीना था इंडिया यूएई एफटीए का, उसको मैंने एनालाइज किया। उसमें आयरन, स्टील है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और मैनी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जो कि फर्स्ट मंथ था, उस समय इंडस्ट्री को उतना मालूम भी नहीं था। तो मेरे को लगता है ये एफटीए जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में बहुत मदद करेंगे, और ये जो पार्टनरशिप है ये बियॉन्ड एफटीए है। We are talking about the investment, we are talking about the government procurement, intellectual property right. So all these issues are extremely important, और FTA से हमारे MSMEs को definitely better market मिलेगा, more competitive market access उनको मिलेगा, जिससे उनके एक्सपोर्ट में जरूर मदद मिलेगी। सर, ये PLI को आप कैसे बताएंगे? MSMEs कहते हैं, PLI जो एक सही दिशा में कदम तो है, लेकिन उसमें
हम लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, PLI हमने लॉन्च किया था बिकॉज कुछ सेक्टर में हमें मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है प्रॉब्ली वो MSMEs नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो करते भी हैं तो उनकी वो SME लिमिट क्रॉस कर जाती है। जैसे मैंने बोला, मैं इस PLI स्कीम को हब एंड स्पोक मॉडल में देख रहा हूँ। हमारे जो SMEs हैं वो स्पोक मॉडल में आ सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना चाहिए, देखिए जितनी PLI अप्रूवल है सब में एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोकल कंटेंट बढ़ाना है। तो जो लार्ज कंपनीज भी आएंगी दे विल बी कमिटेड टू प्रोक्योर मोर फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज, इसलिए उनके इंटरेस्ट में भी है कि MSMEs को वो डेवलप करें। और जैसे मैंने पहले कहा है, अगर MSMEs वो डेवलप होते हैं, today they are supplying to one large companies, tomorrow global market will be open. Look at the case of Sona Steering, they started an ancillary of Maruti, today they are the world leader in steering. एंड सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि RBI has allowed cross border trade in Indian rupee, तो इसमें जैसे बात हो रही है कि ट्रेड को बूस्ट कर सकता है रशिया के साथ, बाकी और किन रीजन्स में आप देख रहे हैं? देखिए, ये अगर तो आप देखिए तो हमें दो तरह के कंट्रीज हैं जिनमें ये रुपी ट्रेड बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक तो वो कंट्री जो कि फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज फिटनेस कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और जो रीसेंट इंडिकेशन आ रहे हैं इवन बांग्लादेश में चैलेंजेस आ रहे हैं। कल बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने एक ऑर्डर इशू किया है कि कोई भी बांग्लादेश बैंक अगर 3 मिलियन से ऊपर की LC ओपन करता है तो 24 आवर्स पहले उसको बनाना पड़ेगा। उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी है। तो जितने कंट्रीज आज की डेट में, बहुत से कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज है, उनको एक अपॉर्चुनिटी इंडिया से रुपी ट्रेड करने के लिए। सेकेंडली, बहुत से कंट्रीज जो हैं वो सैंक्शंस में, मे बी रशिया, मे बी ईरान और मे बी मेनी अदर कंट्रीज, वो भी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस टूल में अगर हमारा सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट आता है तो डॉलर डिमांड जो है वो भी कम हो सकती है, और डॉलर पे कम प्रेशर आएगा तो जो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी की बात चल रही शायद वो भी कम हो। तो एक बहुत अच्छा कदम है, और आई थिंक इसके रिजल्ट जो है बहुत सून आएंगे, और हम इसमें काफ़ी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए भी इस मैकेनिज्म के थ्रू देख सकते हैं। सर, हम इस चर्चा के अंत में आ गए, तो चलते हुए आपसे कुछ फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे। सर, व्हाट अबाउट द एक्सपोर्ट टारगेट फॉर FY23 जो $500 बिलियन का है? आर वी मूविंग ऑन द राइट पाथ, या कैसे आपको दिख रहा है ये जो चैलेंजेस? एज ऑफ नाउ, इफ यू आर लुकिंग इनटू द एक्सपोर्ट्स मेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जुलाई, वी आर डेफिनेटली ऑन दैट पाथ, बट देयर आर headwinds in the global trade, and that we need to look into. Situation can materially change if we reach a ceasefire in Russia, Ukraine, and therefore as of now we believe that this target is achievable. Of course, it requires a lot of effort, revisiting of strategy, addressing some of the challenges which has been highlighted by the industry, but I think a better assessment would be possible probably at the end of the second quarter of the financial year, because we have to bear in mind that a lot of economies, particularly the advanced one, are facing through tough competition, and demand there is definitely going down. डॉक्टर साहब, फाइनली अगर हम देखें कुल मिलाकर ये जो इस समय वर्ल्ड है, व्यू का वर्ल्ड इनफैक्ट वॉलेटाइल है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगुअस है, तो आपका एक फाइनल मैसेज MSMEs के लिए क्या होगा? मैं इंटायरली एग्री कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, अनसर्टन है, बट देन इंडिया नहीं है। आप ये भी ध्यान के रखिए कि अभी भी हम बात कर रहे हैं वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। हमें ये चीज़ें उतनी इफेक्ट नहीं करती बिकॉज वी हैव ए ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो इन ए वे इंसुलेटेड बिकॉज हमारे पास फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है जो कि कंट्रीज़ के पास नहीं है। एंड दिस इज़ द टाइम फॉर इंडस्ट्री to look into medium to long term roadmap. You may not get immediate business because all economies are slowing down, but if you invest at this point of time, I think you will be future ready. Right, sir. That's all the time we had. Thank you very much, Dr. Ajay Sahay, DG and CEO, for joining us and sharing our views, sir. Thank you. Thank you. तो इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इंटरनेशनल ट्रेड में चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन मौके भी कई आ रहे हैं, तो MSMEs खुद को गेयर अप करें। इस माहौल में वो देखकर, समझकर और संभल कर आगे बढ़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।